जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक कर ले लिया है। बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 विशिष्ट स्थानों पर हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि इस अभियान में कई आतंकवादी संगठनों के अड्डे और प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस जवाबी कदम का जश्न मनाने के लिए भाजपा द्वारा दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक विजय रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। उन्होंने तुरही बजाकर और राहगीरों में मिठाइयां बांटकर उत्सव मनाए। आम जनता में भी इस अभियान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखी गई है। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि भारतीय सेना का यह साहसिक कदम देश के गौरव और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। 22 এপ্রিল পাকিস্তানি জঙ্গিদের হানায় আমাদের 26 জন প্রাণ হারিয়েছে এবং সেটা এক কথায় হিন্দু বেছে বেছে মারা হয়েছে। সেইটার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ গর্জে উঠেছিল, ক্ষোভে ফুঁসছিল এবং তারা চাইছিল কোন সময়ে এর একটা উপযুক্ত জবাব পাওয়া যাবে। গতকালকে রাত্রি 1টার পরে ভারতীয় সেনা ভারত সরকারের নির্দেশে এবং ভারতীয় সেনাদের উদ্যমে পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটি একসঙ্গে মিসাইল দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং অসমর্থিত বলি আর যাই বলি প্রায় 1200-র উপরে জঙ্গি সেই ঘটনাতে নিহত হয়েছে। এই কারণে সারা ভারতবর্ষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আজকে সকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এরকমভাবে জাতীয় পতাকা হাতে পতাকা পাঠানোর মাধ্যমে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর জয়গান করার মাধ্যমে এই অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে এবং আমরা অপেক্ষা করছি অপারেশন সিঁদুর 2 অনতিবিলম্বে সংগঠিত হবে। এইটুকুই আজকের পর। ব্যুরো রিপোর্ট PVTV নিউজ। সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না। তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से सटे उत्तरायण टाउनशिप में आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि आबकारी अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। घटनास्थल से 4 लग्जरी कारें, कई मशीनें, भारी मात्रा में स्प्रिट सहित अन्य सामग्रियों को बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न ब्रांड की भारी मात्रा में नकली शराब भी बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ देसी विदेशी ब्रांडेड कंपनियों के नकली शराब बनाए जा रहे थे। आबकारी विभाग के अधिकारी सुजीत दास ने जानकारी देते हुए इस मामले में अपनी बातों को रखा। नकली शराब है और
नकली शराब जब्त किया है एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बीच यह प्रक्रिया, रेड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसमें 4 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है और लगातार हमारी इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। ভেতরে ঢুকেন না আপাতত এখান থেকে নিচ্ছি এই ছাদে চলো তো একজন আমার সাথে আমরা 4টে হাই এন্ড লাক্সারি কারকেও আমরা সিজ করেছি যেটা ডাইরেক্টলি ইনভলভ ছিল ইন ট্রান্সপোর্টিং সাচ লিকার্স লেভেলস হলোগ্রামস ক্যাপ এটসেট্রা বিকজ আপনারা জানেন হাই এন্ড গাড়ি চট করে চেক করে না, কেউ ভাবতেও পারে না যে এই লাক্সারিয়াস কারে করে এই ধরনের লেভেল পাচার হচ্ছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ আ থর, এই থরটাও সিজ করেছি, একটা আপনার টয়োটা গাড়ি সিজ করেছি, একটা নিশান সিজ হয়েছে, আরেকটা গাড়ি সিজ হয়েছে, ওটা ব্র্যান্ডটা বলতে পারছি না এখান থেকে। আমার কাছে খবর আছে লাস্ট 2 মাস থেকে, পিন পয়েন্টেড বলতে পারবো না কতদিন ধরে করছে। এরা বিহারের বাসিন্দা। It is above crore at this point of time. I cannot ascertain you because the process of seizure is still going on. ঠিক। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने की बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिलीगुड़ी में पुलिस उस समय हैरान रह गई जब उन्होंने एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। बता दें कि ट्रक में मकई से भरे बोरे की आड़ में गांजे की तस्करी की जा रही थी और तलाशी के दौरान पुलिस ने 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के महानंदा ब्रिज पर नाका चेकिंग की। सूचना सही निकली और चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस घटना में ट्रक चालक रॉबिन कयाल और सहचालक कल्याण भुइया को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों दक्षिण 24 परगना के निवासी बताए जा रहे हैं। गौरतलब हो कि गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के बाद पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली कि गांजा को तस्करी के लिए कूच बिहार के तूफानगंज से दक्षिण 24 परगना के बशीरहाट ले जाया जा रहा था। वहीं इस अभियान में बरामद 200 किलोग्राम गांजा का अनुमानित बाजार मूल्य 4 लाख रुपए होगी। वहीं गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रधान नगर थाने के आईसी वासुदेव सरकार ने दी। কি পাওয়া গেল ওই ট্রাক তল্লাশি চালিয়ে? তল্লাশি চালিয়ে 2 কুইন্টাল 2 কেজি 202 কেজি মতো নয় 202 কেজি গাঁজা। আচ্ছা, ট্রাকটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল এবং কতজন গ্রেপ্তার? ট্রাকটি ড্রাইভার যে সেই হলো মালিক বেসিক মেনলি, আর তার হেল্পার আছে 2 জন। তাদের কথা অনুযায়ী এটা নিশিগঞ্জের কাছে কুচবিহারের কোনো জায়গা থেকে লোড হয়েছে, আকরার হাট বলে জায়গায়, তার আশপাশে কোনো জায়গা থেকে যাওয়ার কথা ছিল এটা বসিরহাট। কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে? 2 জন। কোয়ান্টিটি কত আছে? 2 কুইন্টাল 2 কেজি। এটা কি গোপন সূত্রে খবর? হ্যাঁ, খবর ছিল, তারপর সেই অনুযায়ী চলছিল, তারপর আমাদের নাকা লাগিয়ে দিই, নাকাতে আলটিমেটলি। এইভাবে চিকেন নেককে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে কোথাও গরু পাচার, কোথাও গাঁজা পাচার চলছে। এটা কি এরা সেফ করিডোর বানিয়ে না, নিয়েছে? আমি আর বিস্তারিত বলতে চাই না, যেটুকু ফ্যাকচুয়াল সেটুকু বললাম, বাদ বাকি আমাদের অনেক। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।
तारों की लहरों সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2। चितरंजन के डीएवी बॉयज, डीएवी गर्ल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक विशेष अभ्यास का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से छात्रों को आत्मरक्षा और आपातकालीन युद्ध जैसी स्थितियों में आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही अभ्यास के दौरान सायरन बजाकर छात्रों को सिखाया गया कि विभिन्न प्रकार के सायरन का क्या अर्थ होता है और किन परिस्थितियों में कैसे प्रक्रिया देनी चाहिए। और उससे अगर प्रभावित होता है तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो ये लेटने का पोजीशन ये बताया गया है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन अगर हो तो इसी तरह का पोजीशन लेंगे और अपने आप को बचाएं। তবে কি করবে না সেটা তো পরের ব্যাপার। আগে যখন সাইরেন বাজবে তখন কি করতে হবে? সাইরেন বাজার সাথে সাথে আমাদের ইমিডিয়েট ঘরে যদি থাকি, রাত্রিবেলায় যদি হয় সাইরেনটা বাজে, তাহলে আমরা ইমিডিয়েট ঘরের মধ্যে গিয়ে লাইট অফ করে দেবো। লাইট অফ করে দিয়ে জানলা টানলা ইউজ করতে হবে। মোমবাতি, মোবাইল কিংবা টর্চ যদি আমরা ঘরের ভিতর থাকি, এবং পর্দা টেনে দিতে হবে যাতে বাইরে কোনো মতে আলো না যায়। এটা হলো মিনিমাম আলোতে ঘরের মধ্যে থাকতে হবে প্রথম। আর যদি দিনের বেলা হয়ে যায় থাকে, তাহলে ইমিডিয়েট আমাদের যেটা দেখালো সেটা করতে হবে। যেখানে যা মানে ইমিডিয়েট সেন্টার নিতে হবে। কোথায় সেন্টার নেবো? যে একটা কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে হবে, তলায় সিঁড়ির নিচে, বা যেখানে আমি প্রোটেকশন পাবো। নেওয়ার পর থাকতে হবে অল ক্লিয়ার। যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা ওরকমভাবেই থাকতে হবে। রাত্রে হলেও তাই, যত জানিয়ে দেবে আবার ক্লিয়ার হবে, সাইরেন বাজবে, তখন আমরা আবার নর্মাল হব। যে সিভিল ডিফেন্স টিম পুরো এখানে উপস্থিত আছেন, ডিভি বয়েজ স্কুলে, দেশবন্ধু বিদ্যালয় বয়েজ স্কুলে, তাদেরকে অত্যন্ত ধন্যবাদ। কারণ একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন দেশের মধ্যে, সেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং সেই পরিস্থিতিতে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না তারা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দেখিয়েছেন। রাতের বেলা যদি এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হয়, সেখানে সাইরেন কীরকম বাজবে এবং সাইরেনটা এখানে শোনানোও হয়েছে, এবং তখন আমরা কি করতে পারি সেই সব জিনিসগুলো ওনারা ব্যাখ্যা করেছেন। রাতের বেলা লাইট অফ করে দেওয়া, এবং যাতে কোনো যদি বিল্ডিং থাকে তার নিচে কীভাবে বেসমেন্টের নিচে থাকতে হবে। স্কুলে যদি এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয় তাহলে ডেস্কের নিচে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হবে। এই যে প্রাইমারি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো ওনারা স্টুডেন্টদেরকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আমাদের বাচ্চারা খুব ভালোভাবে শুনেছে, যেটা খুবই দরকার এরকম সিচুয়েশানে। সেই জন্য আবার আমি সিভিল ডিফেন্স সমস্ত টিমকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। না অবশ্যই, কারণ কি এটা দেশের ভবিষ্যৎ, যেখানে দেশাত্মবোধ, আমরা একজন, হ্যাঁ, যেখানে দেশের পরিস্থিতি রয়েছে সেখানে সবাই আমরা ভারতীয়, এবং এইরকম পরিস্থিতিতে বাচ্চারাও খুব এনার্জেটিকভাবে এই প্রোগ্রামটা নিয়েছে। কারণ এটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপার একটা প্রশ্ন আছে, সেখানে এনারা দেখিয়েছেন কতটা মিনিমাম লস
মানে করানো যায়, কারণ এই যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলে সেখানে একটা হিউজ লস থাকে। সেখানে আপনারা দেখিয়েছেন কিভাবে কম ক্ষতি যাতে হয় এবং কিভাবে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারবো নিজেকে। এই জিনিসগুলো বাচ্চারা ভালোভাবে শিখেছে এবং হচ্ছে তাদেরকে যখন প্রশ্নও করা হয়েছে তারাও কিন্তু অনেক রকম প্রশ্ন করেছে ডিফেন্স টিমকে এবং সেই উত্তরও তারা পেয়েছে। আমার নাম বৈদ্যনাথ ওরাং। হ্যাঁ, আমি ডিবি বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही पूरा हिंदुस्तान इस कायराना हमले का बदला लेने के लिए आतुर था। मिली जानकारी के अनुसार कल भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए, जिसमें बड़ी तादाद में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कई आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है, जिसे लेकर आज भाजपा के युवा नेता अभिजीत राय के नेतृत्व में आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने आने जाने वाले लोगों को मिठाई खिलाई गई। आपको बता दें कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, इसलिए इन्होंने आने जाने वाले लोगों को सिंदूर लगाकर इस हमले का जश्न मनाया। वहीं इस मौके पर अभिजीत राय ने अपने वक्तव्यों को रखा। গিয়ে তাদেরকে যেটা এয়ার রেড করেছে এবং এয়ার রেডে আমরা এখনো পর্যন্ত যেটা জানতে পেরেছি শতাধিক উগ্রপন্থী এবং উগ্রপন্থাকে সাপোর্ট করা যে পাকিস্তান, সেই পাকিস্তানের তারা নিকেশ হয় এবং এইখানে আসানসোলের রাষ্ট্রবাদী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এখানে যেহেতু অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, যেহেতু সবাইকে বীর তিলক সিঁদুর দিয়ে পরিয়ে আমরা আসানসোলের রাষ্ট্রবাদী জনগণ আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের যে পেহেলগাঁও হামলার এতদিন যে আমরা ধৈর্য ধরেছিলাম, আজকে আমাদের বুকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। আশা করছি ইন্ডিয়ান আর্মি যেভাবে অপারেশন চালাচ্ছে, এই যে জঙ্গির মদতদাতা পাকিস্তান বা জঙ্গির আতুরঘর পাকিস্তান, তারা উচিত শিক্ষা পাবে কিছুদিনের মধ্যে এবং আমরা রাষ্ট্রবাদকে, সর্বোপরি রাষ্ট্রবাদকে আমরা আবার পুনঃস্থাপন করব। যে যতবার এইরকম জঙ্গি হামলা হয়েছে ভারত প্রত্যেক একদম অনেক অনেক শুভকামনা ওনাদের জন্য যে এইভাবে আমাদের প্রতিবাদ করার জন্য। এই যে অবস্থা, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এই যে অবস্থা তৈরি হচ্ছে, আমাদের দেশের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা মানুষেরা মারা যাচ্ছে, কি বলবেন পাকিস্তানকে? পাকিস্তানকে কিছু বলার নেই, সত্যি কথা বলতে ওদেরকে বলার কোনো ভাষা নেই, ওদেরকে বলার কোনো ভাষা নেই। এইরকম জঙ্গি আক্রমণকে কিভাবে দেখেন? এটা তো মানে মানবতার একটা অপমান করা, এটা তো আর কিছুই না। এটা মানে এই এদের কোনো কিছু বলারই কোনো ভাষা নেই। নাম বলছিলাম। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली थी। इस जवाबी कार्रवाई को सेना द्वारा 26 वीरांगनाओं के सिंदूर का सम्मान बताया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में दुर्गापुर के विश्व सनातनी ओइक्या मंच ने चंडीदास बाजार में जश्न का आयोजन किया। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे मंच के सदस्यों ने बैंड पार्टी के साथ मार्च निकाला, सिंदूर और मिठाइयां बांटी और राहगीरों व वाहन चालकों को मिठाई खिलाकर सेना की सफलता का उत्सव मनाया। वहीं बाजार में जय हिंद और भारत माता की जय के जयकारे गूंजते रहे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला महासचिव अभिजीत दत्ता, भाजपा नेता परिजात गंगोपाध्याय और सुमंत मंडल ने किया तथा इस मौके पर अभिजीत दत्ता ने अपने वक्तव्य रखे। বিগত 22 তারিখে যেভাবে পাকিস্তান নক্কারজনকভাবে আতঙ্কবাদী হামলা করেছিল পেহেলগামে, নিরস্ত্র নিরীহ পর্যটকদিকে তার মাতৃশক্তির সামনে তার স্বামীর প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, 26টা তরতাজা যুবককে হত্যা করেছিল, তারই প্রতিবাদ গতকাল রাত্রে 12:40 ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যেভাবে 9টা মিসাইল দেখেছে পাকিস্তানের বুকে, 100-র অধিক জঙ্গি নিহত হয়েছে এবং 9টার বেশি জঙ্গি ঘাঁটিকে ধ্বংস করেছে এবং সেই
মিশনের অপারেশনের নাম দিয়েছিল সিন্দুর। কারণ আজকে আপনারা দেখলেন বিশ্ব সনাতনী ঐক্য মঞ্চের সাথে নিয়ে আমরা এর ব্যানারে সাধারণ মানুষকে 140 কোটি ভারতবাসীকে সাথে নিয়ে সিন্দুর এবং আলতা দিলাম। তার প্রথম কারণ হচ্ছে যেভাবে ওরা নিরপরাধ স্বামীটিকে হত্যা করেছিল, সিঁদুর কেঁদে দিয়েছিল, আজকে মাননীয় মোদিজি দেখিয়ে দিল ভারতবর্ষের ক্ষমতা কতটা আছে। পাকিস্তান যদি এখনও না শুধরায়, ভারতের মানচিত্র থেকে, পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তান থাকবে না। এই প্রতিশ্রুতি ভারতের 140 কোটি জনতা দিচ্ছে, তার সাথে সনাতনী বিশ্ব ঐক্য মঞ্চ রয়েছে। আজকে এর উদ্যোগে ভাই পারিজাত গাঙ্গুলি, মনীষা, ভাই সুমন্ত, মুকেশ, সবাই, দেবাশিস রায়, সবাই আমরা উপস্থিত হয়েছি। আজকে বিকেল 5টার সময় ব্যানার্জিটি পাঁচমাথা মোড় থেকে আজকে আরেকটা বিজয় উল্লাস মিছিল হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান এই টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি বন্ধ করছে, ভারতের সাথে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে 140 কোটি ভারতবাসী রয়েছে, এইভাবে উল্লাস করবে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার। পাকিস্তান যত ধ্বংস আমরা তত উল্লাস করব। আমার নাম অভিজিৎ দত্ত, বিশ্ব সনাতনী ঐক্য মঞ্চের আমি একজন ফাউন্ডার মেম্বার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रेलवे की ओर से लगातार विकास कार्यों को अंजाम दिए जा रहे हैं और रेलवे की तरफ से अब रेलवे की जमीनों पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिससे कि रेलवे की आमदनी बढ़े और रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो। इसी कड़ी में आसनसोल में भी रेलवे की जमीनों पर रेलवे द्वारा दखल लेकर उन पर काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि आज आसनसोल के रेल पार इलाके में 24 नंबर वार्ड अंतर्गत महुआ डंगाल इलाके में जब RPF रेलवे के अधिकारी और IW के अधिकारी पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे के अधिकारी यहां पर बिना किसी नोटिस दिए आए हैं और उन्होंने यहां पर घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं इस बारे में इलाके की पार्षद फंसबी आलिया ने अपनी बातों को रखा। उन लोग को बात करके आना चाहिए। अभी एक पूरी हॉस्पिटल गई, उसका तबीयत बिगड़ गया, अचानक वो लोग आ गया, अचानक वो लोग आकर तोड़ने लगा, हादसा हो गया, हादसा से तबीयत खराब हो गया। पूरा हमर अपना सामान लेकर आकर यहाँ पर क्वार्टर को तोड़ना चालू कर दिया अचानक, विदाउट इंफॉर्मेशन या फिर ना कोई नोटिस। आप लोग जो अचानक इस तरह से जो परेशान करिएगा, ये हम लोग परेशानी हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा परेशानी आप लोग पश्चिम बंगाल से बाहर दिखाइए, वहाँ पर चल रहा है, आप लोग का क्या कर रहे हैं वो सब हम लोग देखने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर ऐसा परेशानी होगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी अचानक 100 फोर्स आकर यहाँ पर तोड़ा तोड़ी शुरू कर दिया। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, हैंडीकैप लोग यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग हैं जो 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। और जो है अचानक आके आप आगे में चलिए, आपको दिखाते हैं, तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम लोग जो है उन लोगों को यहाँ से भगाए हैं। हम लोगों का डिमांड यही है कि रिहेबिलिटेशन, यानी जो ये लोग यार अगर डेवलप करना है सिटी को, अगर आपको अपने इस जगह को डेवलप करना है, कीजिए ना। हम लोग 100% आपका साथ है डेवलप करने के लिए। लेकिन डेवलप करने का वजह से अगर कोई अड़चन आता है, किसी का जान चला जाता है, कोई डेवलप करने में अगर आपका किसी का छत उजड़ जाता है, 300 परिवार बेघर हो जाता है, तो ऐसा डेवलप करने से क्या आपको खुशी मिलेगा? हमको यकीन है कि कोई भी ऑफिसर को खुशी नहीं मिलेगा किसी का छत उजाड़ करके अपना डेवलप करने में। डेवलप कीजिए, उसके साथ हम लोग सब भी है, पूरा इलाका का आदमी भी साथ है आपका। लेकिन इन लोगों का थोड़ा सा व्यवस्था कर दीजिए, इन लोग को मोहलत दे दीजिए, इन लोग को इतना समय दीजिए कि आप लोग, इन लोग अपना घर कर सके, इन लोग अपना रहने का इंतजाम कर सके। उसके बाद आप ये तो काफ़ी दिनों से नोटिस दिया जा रहा है कि तोड़ा जाएगा, तो इतना दिनों में अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया? इतना दिन में इसलिए कि नहीं किया गया क्योंकि ये DRM ऑफिस से हम लोगों का एक डिमांड था, छोटा सा डिमांड है, बहुत बड़ा डिमांड नहीं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को इतना बड़ा बड़ा भारत का ज़मीन दे रही है, तो छोटा सा ज़मीन यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको नहीं दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दे, उन्हें नहीं दे दे। स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ज़मीन दे देगी तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से अर्जी कर करके, ममता बनर्जी से अर्जी कर करके, हमारे जो विधायक हैं मोलाई घटक, उनको अर्जी देंगे कि आप लोग ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गरीब का लिए घर बनाए, तो उन लोग हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा भी है यहाँ के लोगों की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को इस तरह की कहीं पे भी जगह ज़मीन देती है तो हमें उसमें गरीबों का घर बनाने का जिम्मेदारी हम लोग ले लेंगे। तो ये काम के लिए हम लोग बस रुके हुए। हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि इसका छत उजाड़ने से पहले छत का इंतजाम कर दिया जाए और मोहलत दे दिया जाए। आपका नाम?
आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से भारत की महिलाओं के सुहाग उजड़ गए थे। आपको बता दें कि इसके खिलाफ कल भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए गए, जिसमें कि यह आतंक के ठिकाने ध्वस्त हो गए। वहीं इस हमले में कई कुख्यात आतंकवादियों के मरने की भी खबर है और इसी खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आसनसोल के बाजार इलाके में जीटी रोड के किनारे स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए और आने जाने वाले लोगों को मिठाइयां खिलाई गई तथा इस मौके पर यहां वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर चौधरी, सुदीप चौधरी, आशा शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे एवं सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को धन्यवाद दिया, जिन्होंने आतंकवादियों और आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। आज बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को और हमारे भारतीय सेना को, जिन्होंने 15 दिन के अंदर ये कार्य करके दिखाया है। हमारे देश में जो गद्दार छुपे हुए हैं, हमारे देश के गद्दार को, तो मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से उन गद्दारों को और खासकर नया सिंह राठौर को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जिस तरह आप गद्दारी की देश के लिए, तो मैं एक माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज हमारे मोदी जी ने देश का मान शान को बढ़ाया, हमारे देश का शान को बढ़ाया है। तो मैं गीत के माध्यम से उन्हें जवाब देना चाहती हूँ कि आज नेहा सिंह राठौर चुप क्यों हैं, उसे जवाब देना। आपने कहा था कि मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आप देखिए आँख खोल कर क्या कार्रवाई हुई है। और यहाँ से भारत में छुपे हुए गद्दारों को भी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि পাকিস্তানের যে সমস্ত জঙ্গি ঘাঁটিগুলো আছে, যারা সেখান থেকে জিহাদিদের ভারতবর্ষে পাঠাতো, তাদের কাছে গিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী আজকে স্ট্রাইক করেছে আর এই জিহাদি সমস্ত জায়গাগুলোকে ধ্বংস করেছে। তাই জন্য আজকে আসানসোল মন্ডল 2 এর পক্ষ থেকে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাবার জন্য এখানে ফটকা ফাটিয়ে पुकारती कश्मीर है, पुकारती माँ भारत। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भारत की सेना ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आपको बता दें कि यह 1971 के बाद पहली बार है जबकि भारत ने पाकिस्तान में सीधे आतंकी ठिकानों पर हमला किया और यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 26 पर्यटकों की क्रूर हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर भीतर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त कर दिया गया। इनमें 5 ठिकाने पीओके में और 4 पाकिस्तान के भीतर थे। यह सभी स्थान आतंकियों के प्रशिक्षण और लॉन्च पैड के रूप में उपयोग किए जा रहे थे। वहीं इस ऑपरेशन के बाद भारत सरकार और सेना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्यों को रखा। बता दें कि प्रेस वार्ता में संसद हमला, मुंबई हमला, पुलवामा हमला और हालिया पहलगाम हमले के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है
और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट्स हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2। हाई स्कूल में राज्य सूची में नाम नहीं आया, लेकिन सपना अधूरा भी नहीं रहा। दृढ़ निश्चय और पिता के संघर्ष के बल पर दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड के पंसीउली गांव की श्रीपर्णा मंडल ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 10वां स्थान हासिल कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया। आपको बता दें कि श्रीपर्णा पंसीउली हाई स्कूल की छात्रा है और उनके पिता सौम्या मंडल एक किसान तथा गृह शिक्षक है। कोरोना काल में बीमा एजेंट की नौकरी जाने के बाद उनके पिता ने खेतों में काम कर परिवार का पालन पोषण किया, साथ ही अपनी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ही संभाली। बता दें कि किसी कोचिंग या ट्यूशन की मदद के बिना ही श्रीपर्णा ने 488 अंक हासिल किए हैं, जिनमें बंगाली में 91, अंग्रेजी में 99, भौतिकी में 99, रसायन विज्ञान में 93, जीव विज्ञान में 97 और गणित में पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं। बता दें कि इस अवसर पर श्रीपर्णा की मां अर्चना मंडल और पिता सौम्या मंडल ने भावुक होकर अपनी बातों को रखा। वहीं परिणाम आने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचायत प्रधान गौतम घोष और तृणमूल के स्थानीय अध्यक्ष भी श्रीपर्णा को सम्मानित करने उनके घर पहुंचे। श्रीपर्णा का अगला लक्ष्य डॉक्टर बनना है और श्रीपर्णा ने भी इस विषय पर अपनी खुशी को जाहिर किया। মাধ্যমিকের রেজাল্ট 2 নম্বরের জন্য 10 নম্বর আসতে পারেনি, উচ্চ মাধ্যমিকে এসে 10 নম্বর এসেছে, কতটা ভালো লাগছে? ভালো লাগছে, তবে মনে হচ্ছে একটু হলে ভালো হতো, একটু নাম্বার এক্সপেক্ট করেছিলাম। কত নম্বরে আশা করেছিলে? টোটাল কত নম্বরে আশা করেছিলে বা কত নম্বরে অ্যানসার দিয়েছিলে? অ্যান্সার তো ফুল, সবই ফুল মার্কসে দিয়েছিলাম, তবে আশা করেছিলাম 90 মানে 490 এর উপরে পেতাম মনে হচ্ছে। এই যে 488 এই নাম্বার পেয়ে, এই যে আপনার মেয়ে মাধ্যমিক মাধ্যমিকেও ভালো রেজাল্ট করেছিল, এরপর উচ্চ মাধ্যমিকে পশ্চিমবঙ্গে 10ম স্থান অধিকার করেছে, কেমন লাগছে? ভালো
লাগছে কি আশা করেছিলেন মেয়ের কাছে, কেমন হয়েছে? ঠিকই আছে। মেয়ে কতক্ষণ পড়াশোনা করতো? মেয়ে তাও 10 ঘন্টা তো করতোই। টিউশন কতগুলো ছিল? টিউশন এই যে মেয়ে মাধ্যমিকেও একটা ভালো র্যাঙ্কে ছিল, উচ্চ মাধ্যমিকেও পশ্চিমবঙ্গে 10ম স্থান অধিকার করেছে, তাতে কতটা খুশি? হ্যাঁ, খুশি তো ওটাই, কারণ মাধ্যমিকে ও 1 নম্বরের জন্য র্যাঙ্ক করেনি, মানে র্যাঙ্ক বলতে ওই মানে 10ম স্থানে আসতে পারেনি, সেই আফসোসটা ছিল। সেই আফসোসটা যা হোক এটাতে কিছুটা মেকআপ হলো। আর আমরা আশা করেছিলাম যে আরও একটু হয়তো 6 বা 7, 5 এরকম র্যাঙ্ক হবে, যে দেখ নাম্বার হয়তো পুরো ভুল হয়েছে। মেয়ে কতক্ষণ পড়াশোনা করতো? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आज बुधवार को दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा इंटक ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय सिटी सेंटर दुर्गापुर में एक सभा प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में पश्चिम बर्धमान जिला इंटक अध्यक्ष श्री सुभाष साहा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री तरुण रॉय, दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा इंटक अध्यक्ष श्री रॉबिन चटर्जी, दुर्गापुर लॉ सेल सचिव देवयानी दास, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा इंटक अध्यक्ष श्री राजेश पासवान, डीवीसी ठेकेदार श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री दीप्ता डे, एएसपी ठेका मजदूर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री स्वपन कुंडू, सचिव श्री कनाई बसाक, संगठन सचिव श्री मनोजीत चक्रवर्ती, रानीगंज विधानसभा इंटक के महासचिव श्री जमालुद्दीन मियां, डीएमसी कैजुअल सफाई कर्मचारी संघ के सचिव श्री उज्जवल रुईदास, दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल श्रमिक संघ की ओर से श्री राजा बावरी और श्री शशिकांत बावरी सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। যে দুর্গাপুর শহরকে আজকে সরকার বলছে যে গ্রিন দুর্গাপুর, ক্লিন দুর্গাপুরের কথা বলছে। আদতে আমরা দিল্লি থেকেও আমরা যে আরও নিম্নগামী পলিউশনের দিক থেকে আমরা এটা বারবার বলে এসেছি। আজকে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আমরা আবার দাবি সদন রাখলাম যে আপনারা দেখুন এখানে যেখানে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ, যেগুলো স্পঞ্জ আয়রন, যেখান থেকে বেশি করে দূষণ হচ্ছে, ডিপিএল, ডিভিসি, এদের যে অ্যাসপন্ড রয়েছে, অ্যাসপন্ডগুলো লক্ষ্য করুন যে পর্যাপ্ত জল তাদের সরবরাহ হচ্ছে না, এবং যেসব কারখানাগুলি চালাকি করছে, যখন খবর পাচ্ছে দপ্তর থেকে কোনোভাবে লিক হচ্ছে যে এনারা যাবেন ওখানে, সেই সময় কিন্তু মেশিন চলছে, এবং তাদের যখন খবর পেয়ে যাচ্ছে তখন মেশিন চালাচ্ছে, বাদবাকি সময় মেশিন বন্ধ থাকছে। এই দিকে কষা সবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি সদন রেখেছি যে দুর্গাপুরকে আরও আপনারা মনিটর করুন, আপনারা পদক্ষেপ নেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।